मैं शुभ्रांशु, मैं IIT दिल्ली से आया हूँ। मैं राहुल त्रिवेदी, मैं एक कंसल्टिंग कंपनी से आता हूँ। आई एम पीयूष सुंथलिया, आई एम अ CA फाइनल स्टूडेंट एंड डूइंग बिजनेस। हमारे देश के राजनीतिक हालात आज एक बड़ी चिंता का विषय हैं और इन हालातों के लिए जिम्मेदार है एक अपरिपक्व राजनीतिक सोच, जिसका नतीजा है भ्रष्टाचार, गरीबी, बढ़ती महंगाई और घटती विकास दर। इसीलिए अब बदलाव बहुत जरूरी है और ये बदलाव लेकर आ सकती है इस देश की युवा पीढ़ी, क्योंकि सोच में परिपक्वता उम्र से नहीं बल्कि कुछ कर गुजरने के जज्बे से आती है। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं होता तो आइए हम आपको दिखाते हैं ऐसे ही जज्बे से सराबोर कुछ हस्तियां। यूथ आइकॉन्स ऑफ इंडिया। छत्रपति शिवाजी महाराज 1627-1680 fought his first battle against the Bijapur commander of the Torna fort named Inayat Khan. Then he was 17. Swami Vivekanand 1863-1902 delivered the famous inspiring speech in 1893 at the World's Parliament of Religion in Chicago. Then he was 30. Rani Lakshmi Bai of Jhansi 1828-1858, leading figure of the first war of Indian independence in 1857, fought the war against the British. Then she was 30. Mohandas Karamchand Gandhi 1869-1948 started the civil rights movement in South Africa in 1893. Then he was 24. Vinayak Damodar Savarkar 1883-1966, revolutionary, sentenced to 2 life terms imprisonment amounting to 50 years. Then he was 27. Khudiram Bose 1889-1908, youngest revolutionary. He was sentenced to death in a bomb case. Then he was 19. Chandrasekhar Azad 1906-1931, founder of HRSA revolutionary group, shot himself keeping his pledge to never be captured alive. Then he was 25. Bhagat Singh 1907-1931, Indian nationalist, considered to be one of the most influential revolutionary, hanged to death. Then he was 24. Shyama Prasad Mukherjee 1901-1953, founder of Bharatiya Jan Sangh, fought for Jammu and Kashmir and once said, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे. Became the youngest vice chancellor of the University of Calcutta in 1934. Then he was 33. N.R. Narayana Murthy. He co-founded Infosys in 1981. Then he was 35. P.T. Usha, Queen of Indian Track and Field, won her first gold in 1983 Asian Track and Field Championship in Kuwait. Then she was 19. Sachin Ramesh Tendulkar. Tendulkar played his first test match against Pakistan in Karachi in 1989. Then he was 16. Captain Vikram Batra 1974-1999, posthumously awarded the Paramveer Chakra for his actions during the 1999 Kargil War. Then he was 25. Dr. APJ Abdul Kalam, Missile Man of India, became project director in ISRO of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV-3 in 1969. Then he was 38. Atal Bihari Vajpayee, a poet, politician and statesman, the most popular mass leader and regarded as one of the best prime ministers of India till date. In 2012, he was chosen 3rd greatest Indian in a nationwide poll held by History TV and CNN IBN. He started his political career at the age of 27. He became member of parliament in 1957. Then he was 33. Next can be you. जी हाँ, इसी जज्बे की आज सख्त जरूरत है हमारे देश को। इसीलिए युवाओं को राजनीति से जोड़ने की पहल की है भारतीय जनता युवा मोर्चा ने स्टडी सर्कल के जरिए।
भारतीय जनता युवा मोर्चा ने स्टडी सर्कल की शुरुआत की आज के युवाओं की जीवन शैली को देखते हुए। आज के दौर में युवाओं का एक बड़ा वर्ग अपनी शैक्षिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों के चलते चाहकर भी राजनीतिक क्रियाकलापों में अपनी सक्रिय भागीदारी नहीं निभा पाता और इसी वर्ग को एक उपयुक्त मंच प्रदान कर राजनीति से जोड़ने के लिए स्टडी सर्कल की शुरुआत की गई। आइए जानते हैं स्टडी सर्कल के संयोजक श्री जयराम विप्लव से स्टडी सर्कल की शुरुआत के पीछे की संकल्पना को। सुखी, समृद्ध और संभावनामय जीवन की कल्पना हम सभी करते हैं। एक कहावत है कि राजनीति को आप नहीं चुनते, राजनीति आपको चुनती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा स्टडी सर्किल उन युवाओं में विशेषकर जिनके पास सामाजिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक व्यस्तताओं के कारण राजनीतिक कार्यकलापों में भाग लेने की भागीदारी का अवसर उनको नहीं मिल पाता है, ऐसे युवाओं को जोड़ने का एक प्रयास है ताकि वो भी जिस स्तर पर हो सके देश और समाज की सेवा के लिए अपना योगदान दे सके। हाल ही में 2 अक्टूबर को स्टडी सर्कल के एक कार्यक्रम के अंतर्गत पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी के मुख्य वक्ता थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी। साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। मैं शुभ्रांशु, मैं IIT दिल्ली से आया हूँ। मेरा मानना है कि देश के विकास के लिए एक स्वस्थ राजनीति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ राजनीति से मेरा मतलब है जिसमें धर्म और जाति का कोई योगदान ना हो, सिर्फ डेवलपमेंट की बात हो, लोगों के पूरे समाज के, देश के हर हिस्से के डेवलपमेंट के लिए बात हो। और मुझे लगता है इसलिए मैंने बीजेपी का स्टडी सर्कल ज्वाइन किया और मैं ऐसी ही राजनीति में इंटरेस्टेड हूँ। मैं राहुल त्रिवेदी, मैं एक कंसल्टिंग कंपनी से आता हूँ। मैंने बीजेपी स्टडी सर्कल इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैं राजनीति में प्रोग्रेसिव अप्रोच को देखना चाहता हूँ। बीजेपी में स्टडी सर्कल प्रोफेशनल्स लोगों के लिए बनाया गया था। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप युवा लोग जुड़ के देश की सेवा कर सकते हैं। आई एम पीयूष सुंथलिया, आई एम CA फाइनल स्टूडेंट एंड डूइंग बिजनेस। आज मैं अपने फ्रेंड के रिकमेंडेशन पर यहाँ पर आया और आज जो ये यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुआ है उसका सब्जेक्ट मुझे बहुत प्रोग्रेसिव लगा, बहुत बढ़िया लगा, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट का। CA नीरज पांडे, वर्किंग विद ए मल्टीनेशनल कंपनी। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा स्टडी सर्कल से जुड़ा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्र के निर्माण के लिए अच्छे लोगों के आने की बहुत ज़रूरत है और सक्रिय भागीदारी निभाने की काफ़ी ज़रूरत है। इसी कारणवश मैं आज यहाँ हूँ और बहुत सारे लोग हमारे साथ आए हैं जो मैं सरप्राइज था कि इतने सारे प्रोफेशनल्स जुड़ना चाहते हैं और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में श्री अनुराग ठाकुर ने पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट विषय पर बोलते हुए कहा कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भाजपा शासित राज्य। क्या सही मायने में भारत के उन राज्यों में जिन्होंने कभी विकास नहीं देखा था, जहां पर सड़क कम और गड्ढे ज्यादा नजर आते थे, वहां पर विकास हुआ है और विकास के नाम पर वापस सरकारें इस देश में बनी हैं। और जब मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार की बात करता हूं और अब पंजाब की बात करता हूं तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सरकारें दी है जिन्होंने विकास भी किया और वापस सत्ता में आई। तो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट की बात वहां पर की जा सकती है। 2003-2004 में अगर हम बिहार के विकास की बात करें तो -5.1% और पिछले 10 वर्षों का, 9 वर्षों का एवरेज ग्रोथ रेट निकाले तो 11.4% है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये केवल बिहार तक सीमित नहीं होता, मैं 10 राज्यों को गिना सकता हूं, लेकिन 2 और बड़े राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में -3.9% 2002-2003 में था और पिछले 10 वर्षों का एवरेज 7.6% पॉजिटिव ग्रोथ रेट हमारी सरकार ने दिया, शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया। छत्तीसगढ़ में -0.6% 2002-2003 में था और पिछले 10 वर्षों का अगर लेखा जोखा देखा जाए तो 8.6% ग्रोथ रेट हमारी सरकार ने दिया। ये एवरेज है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब देश की सरकार प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हो और ग्रोथ रेट कम होकर 5-5.5% पर आ गई हो, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य 9 और 10% से ज्यादा ग्रोथ रेट पिछले 10 वर्षों में हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य। इसलिए हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पर चर्चा होनी चाहिए। हमने किया करके दिखाया।
गुजरात की बात आती है तो मीडिया जगत में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि पता नहीं कितने सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। 6 वर्ष हमारी सरकार रही, अगर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़ कर किया। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में 140 करोड़ रुपया खर्च किया तो 63 लाख मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के स्कॉलरशिप के लिए खर्च किया। पूरे देश भर की एवरेज मेरे मुस्लिम भाई बहनों की पढ़े लिखों की देखी जाए तो 43% है, लेकिन गुजरात में 57% है, जो लगभग 14% है। समारोह के मुख्य वक्ता श्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या विचार भिन्नता नहीं बल्कि विचार शून्यता है। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा कल के नहीं बल्कि आज के नागरिक हैं और युवाओं के विजन से ही देश के भविष्य को बदला जा सकता है। कभी-कभी लोग मुझे पूछते हैं कि देश की बहुत बड़ी समस्या है कि देश में विचार भिन्नता है, तो मैं कभी-कभी कहता हूँ विचार भिन्नता ये हमारी समस्या नहीं है, विचार शून्यता ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। सही रहे कि गलत रहे, पर कुछ न कुछ विचार रखकर ईमानदारी से काम करने वाले लोगों की देश के लिए आवश्यकता है। दूसरी बात, आप युवा हैं और युवाओं के बारे में ऐसा है कि आप कल के नहीं आज के नागरिक हैं। आपकी सोच, आपकी विजन, आपकी कार्य क्षमता, आपके व्यक्तित्व को, आपके जीवन को, सामाजिक जीवन को और देश को आगे ले जा सकती है। और मैं समझता हूं कि आप में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपको सही दिशा मिलेगी, सही जानकारियां मिलेगी, सही विचार मिलेगा, सही कार्यक्रम मिलेगा, तो स्काई इज द लिमिट। आप सब में क्षमता है देश के तकदीर को और देश के भविष्य को बदलने की। श्री गडकरी ने कहा कि हमारा देश एक धनवान देश है, यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सही नीतियां ना अपनाने की वजह से हमारे देश के लोग गरीब हैं। उन्होंने बताया कि रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस और विजनलेस लीडरशिप हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं आपको जो बात कहना चाहूंगा कि वी आर ए रिच नेशन विद ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है, पर हमने सही नीतियां नहीं अपनाई। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, विजनलेस लीडरशिप एंड नॉट टेकिंग डिसीजन, ये हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास जमीन है, नदियां है, पर्वत है, हमारे साहित्य, संस्कृति, इतिहास, विरासत बहुत श्रेष्ठ है। विज्ञान, तंत्र विज्ञान में हम प्रगति कर रहे हैं। सैटेलाइट हमने लगातार छोड़ रहे हैं। स्पेस साइंस आगे जा रहे हैं। नासा में हमारे भारतीय वैज्ञानिक साइंटिस्ट के रूप में अच्छा कार्य कर रहे हैं। इंडिया इज नॉट ए पुअर नेशन, इट इज ए पुअर मैनेज्ड नेशन। अगर आपको भी देश की राजनीति की दशा बदहाल नजर आती है और आप इसमें बदलाव चाहते हैं, तो आपको खुद बदलाव बनना होगा, क्योंकि बदलाव इस देश के युवा ही ला सकते हैं। अपनी शक्ति को हमें ही पहचान देनी होगी और नेतृत्व की बागडोर संभालनी होगी। अब हमें ही ये तय करना होगा कि वो कौन से चेहरे हैं जिन्हें सत्ता के गलियारों में होना चाहिए और कौन से हैं वो जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। मैं शुभ्रांशु, मैं IIT दिल्ली से आया हूँ। मैं राहुल त्रिवेदी, मैं एक कंसल्टिंग कंपनी से आता हूँ। आई एम पीयूष सुंथलिया, आई एम अ CA फाइनल स्टूडेंट एंड डूइंग बिजनेस।